morning. Now I'll be starting with the midship sections and start Good in morning, sir. morning. So start करने से पहले आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, which I'll be doing the playback for that because this is a silent video. तो इसमें जो parts आएंगे, I'll be telling you as it comes, so that at least you'll have an idea of what these parts are. Now this is your keel plate. तो keel plate आ गई है, and above that your bottom plating has come. This is the bilge plating, which is on the side, the bottom side, and this is the side hull plating. तो ये आपकी कील आई, कील के ऊपर बॉटम प्लेटिंग आई, बिल्ज प्लेटिंग, साइड शेल प्लेटिंग और हल प्लेटिंग आई है. Now this is your watertight solid plate floor, which is in the DB. So this is separating your two DB tanks longitudinally. That is, suppose one port है, two port है, इसके बीच में transversely you will have this kind of watertight plate flow, watertight solid plate flow. This is watertight. It doesn't have any manholes or lightning holes. Now this is your solid plate floor, which is non-watertight. So here you have your manholes and on the side you have lightning holes. ये सब आप लोग ने सेकेंड मेट में पढ़ा है, बट आप भूल गए हो. So just for reminding कि ये चीज क्या है, what are the parts, just reminding that. Now these slots which you see here on the solid plate floor, these are which will be your longitudinals will be passing through them. The bottom longitudinals will be here and inner bottom will be here. Now your longitudinals are L-shaped and they are continuous right from forward collision bulkhead to aft collision bulkhead. So they pass through your bulkheads also through V notches and V collars to make it watertight, the bulkhead. Now these plate floors तो watertight है नहीं, तो यहाँ कोई ऐसा V collar नहीं है. They'll be only going through the V notch. So these are the notches which I was telling you, these cuts. Now these are elliptical. इसमें YouTube पे जो बनाया है this animation, this will be elliptical, not circular. अब ये आपका मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि elliptical ही क्यों है? Why it is elliptical, not circular? ये तो आप सब क्वेश्चन पूछते हैं orals में कि why the manholes are elliptical and not circular. यहाँ ये गलत बनाया है. This is supposed to be elliptical, not circular. सर आदमी फंस जाएगा उसमें. आदमी फंस जाएगा, आदमी नहीं, वो SCBA के साथ फंस जाएगा, तो वो घूम नहीं सकता. तो एलिप्टिकल इसलिए है, सो घूम के निकल जाएगा. अब ये लाइटनिंग होल क्या है? व्हाट इज लाइटनिंग होल? इसका क्या फायदा है? ये तो छोटे साइज है ना, इसमें तो आदमी निकलेगा नहीं, तो होल बनाए क्यों है? सर वाटर पास करने के लिए और उस पे वेट ज्यादा ना आने के लिए. वाटर पास करने के लिए नहीं है बेटा. दिस इज ओनली फॉर लाइटनिंग इट. दैट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस लाइट योर लाइट शिप वेट. उसको रिडक्शन करने के लिए वी आर मेकिंग लाइटनिंग होल्स. जस्ट फॉर दैट. वाटर पास करने के लिए नहीं है. ठीक है, वाटर पास करने के लिए नीचे ही कट बना हुआ है, वहीं से पानी निकल जाएगा ना. यहाँ क्या करना है वाटर पास करने के लिए? तो इसको कट बनाया गया है ओनली फॉर लाइटनिंग द स्टील वेट. अब हमारे जो बिट्स हैं जहाज पे, वो क्या सॉलिड होते हैं? कैसे होते हैं? बिट बोलार्ड में डिफरेंस क्या है? बिट बोलार्ड में डिफरेंस क्या है? बिट कहाँ होता है, बोलार्ड कहाँ होता है? चलो बताओ, बिट एंड बोलार्ड में डिफरेंस क्या है? दोनों देखे आपने. अब आप मेट बन रहे हो, सेकंड मेट नहीं हो, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बिट और बोलार्ड में डिफरेंस क्या है.
Sir, भाई width आप is प्लांट a pair मेंटेनेंस, of two और bollard is single. तो shore पे mostly तो bollard बुलाड़े, रहते हैं, ship पे widths रहते हाँ तो ये तो ठीक है, बट पेयर ऑफ टू का चक्कर इसमें नहीं है। हॉलो शिप होते पे हैं आपके सर। हॉलो होते हैं, मेन पर्पस है हॉलो होता है, विट इज हॉलो, इट इज नॉट सॉलिड लाइक बोलार्ड। क्यों? अगेन रिडक्शन ऑफ लाइट शिप वेट, लाइट शिप का हमको वेट रिड्यूस करना है, तो हम इस तरह से शिप के वेट को रिड्यूस करते हैं। व्हाई वी रिड्यूस? बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज द डेड वेट। Why we have to increase the dead weight? Because we have to carry more cargo, we have to earn more. That is, the owner has to earn more. So displacement तो वही रहेगा ना, शिप का तो डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। तो लाइट शिप वेट को रिड्यूस कर दिया तो डेड वेट बढ़ा दिया। सो दैट इज द रीजन शिप कंस्ट्रक्शन में लाइट शिप वेट को रिड्यूस किया जाता है। इसीलिए हाई टेंसाइल स्टील यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? अगेन सेम थिंग, अब वो बताया था ना, हाई टेंसाइल स्टील यूज करते हैं। व्हाई वी यूज इट? सो दैट वी रिड्यूस द लाइट शिप वेट। हाई टेंसाइल स्टील की वेट कम होता है, थिकनेस कम है। ओके आगे करें। अब ये आगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट जो है ये कनेक्ट करेंगे फ्रेम में। इधर इसके ऊपर फ्रेम्स आएंगे, तो यहाँ ब्रैकेट आ गया विच इज कनेक्टेड टू योर प्लेट फ्लोर, ये सॉलिड प्लेट फ्लोर। और ये जो बीच में आएंगे दीज आर ब्रैकेट फ्लोर्स। सो ब्रैकेट फ्लोर बेसिकली सॉलिड प्लेट फ्लोर नहीं है, फ्रेमवर्क बना होता है। यहाँ का ब्रैकेट और यहाँ का ब्रैकेट जोड़ के फ्रेम बनाया जाता है, एंड दैट इज इन बिटवीन दीज प्लेट फ्लोर्स। क्योंकि अगर ऊपर से कार्गो हैवी लोड किया तो नीचे इंडेंटेशन हो जाएगी, टैंक टॉप के ऊपर कुछ ज़्यादा हैवी कर दिया तो इंडेंटेशन हो जाएगी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए वी हैव प्लेट फ्लोर्स। ये सारा हमने सेकेंड मिड में कराया है, बट थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ सो दैट मिडशिप सेक्शन शुरू करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आगे लॉन्जिट्यूडनल, ये बॉटम लॉन्जिट्यूडनल्स हैं, इस स्लॉट से जा रहे हैं, आपने देख लिया। इनर बॉटम लॉन्जिट्यूडनल ऊपर के स्लॉट से जा रहे हैं। अब ये आ गए, याद करो भाई, सेकेंड मिनट बताया था ये क्या था, व्हाट वाज दिस? किसी को याद है? भूल गए सब? इंटरकोस्टल गर्डर्स। इंटरकोस्टल गर्डर्स ये कंटिन्यूस जाते हैं, बट इतने कंटिन्यूस नहीं होते जितने लॉन्जिट्यूडनल्स होते हैं। इसकी हाइट भी थिक मोर होती है। दिस इज कवरिंग योर डीबी टैंक, टीबी टैंक की हाइट तक आ जाते हैं। बट सर्टेन एरियाज में हाफ हाइट गर्डर भी लगाते हैं, जैसे इंजन रूम एरिया, पाउंडिंग एरिया, एडिशनल हाफ हाइट गर्डर लगाते हैं जिसकी हाइट आधी है इसकी, दैट इज फॉर पाउंडिंग। ये सब सेकेंड मिनट में बताया था। अब जो यहाँ डंडी लगी, ये सारे स्टिफनर्स हैं, मजबूत करने के लिए वी हैव स्टिफनर्स। तो स्टिफनर्स ये कनेक्ट हो गए। अब ये जो आई, this is a plate which is margin plate. So this is the entire plate which is connected here. This is a margin plate. तो इसका काम क्या होता है कि whatever stress comes here, it will distribute to others also. क्योंकि accumulation of stress को avoid करती है, because it distributes the stress to the various plate floors. यहाँ कहीं suddenly cargo टैंक टॉप के जोर से गिरा तो उधर तो इंडेंटेशन हो जाएगी, तो उसको पूरा स्ट्रेस उसने फैला दिया बाकी प्लेट फ्लोर्स में, तो उधर क्रैक कहीं नहीं आएगा। Now these are the bracket floors brackets सेंटर लाइन पे। so यहाँ सेंटर लाइन गर्डर जाएगा, उससे कनेक्टेड है ब्रैकेट्स। अब इसमें वीडियो में नहीं दिखाया गया है कि यहाँ एक पूरा फ्रेमवर्क है, जैसे फुल फ्रेमवर्क है। तो ऊपर और नीचे इनके फ्रेम पूरा लगा रहता है, और इनके बीच में एंगल स्ट्रट लगे होते हैं टू सपोर्ट देम, बट इसमें नहीं है। वो मैं आपको सेकेंड मिनट की एक बार पीपीटी थोड़ा सा दिखा दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड। Now this is your center line girder. This will be on the
on your keel plate, but centerline girder आपके tankers में मिलेंगे, but on your VLOC of your bulk carriers, container vessels, उसमें centerline girder नहीं होगा. In lieu of centerline girder, you'll have two girders, और वहाँ duct keel space बन जाती है. So gas carriers, your container vessels, general cargo, bulk carriers, they'll have duct keels, but tanker will not have duct keel, तो उसमें center girder आएगा. केमिकल टैंकर्स में भी सेंटर गर्डर आएगा. Now these are the frames, और frames basically it's like our ribs, जो हमारी छाती में ribs हैं. So this is preventing your water pressure stress. So they're strengthening your hull plating. तो उसके ऊपर ये stiffener type के लगे, so that बाहर से pressure इसको दबाए नहीं. More आपका draft होगा, more water pressure will be there, and if this is not there, the plate will be caved in. तो उसको prevent करता है frames. Now these are beams. These provide transverse strength to the vessel, and they'll go athwart ships, port to starboard. ये beams हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग में भी बीम लगती हैं, आपने देखा हो छत पे बीम लगी हुई है. तो ये बीम हमारा सपोर्ट करती है, ट्रांसवर्स होती है. डेक जो है ट्विन डेक को सपोर्ट करेगी, मेन डेक के नीचे आएगी तो मेन डेक को सपोर्ट करेगी ये बीम्स. Now this is that structure which is connected to the beam and the frame. This is known as beam knee. This is preventing racking stress, which is due to rolling. Whenever your waves are coming from side, your deck will be stretched, and this will also be turned to one side. तो इसमें ये will pull apart from your frame. उसको prevent करने के लिए the beam knee is attached here. So it is between the beam and frame. This is actually a bracket. बाकी जगह हमारा ब्रैकेट लगा होता है, बट इस एरिया में इसको बीम नहीं कहते हैं. इट इज लाइक अ ब्रैकेट. सर वो साइड वाले शेल में जो ये स्टिफनर है उसको क्या बोलते हैं सर? साइड ये वाले इसको, यस सर. ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, ओके. ये फ्रेम है, ये बीम है, और इसके नीचे जो आया है इसको बीम नहीं कहेंगे. ये बीम नहीं है. चलो आपको सेकंड मिनट का पीपीटी भी दिखा देंगे इसके बाद, तो आपको आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मिडशिप सेक्शन में वो सारी चीज़ें आएंगी और वो समझ नहीं आएगा जब तक बेसिक्स क्लियर ना हो. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स अगेन, तभी मिडशिप सेक्शन आपको समझ आएगा, क्योंकि उसमें अब सिर्फ डायग्राम नहीं बनाना, आपको लिखना भी है. सेकेंड मिनट में तो ओनली डायग्राम था, बट इसमें डायग्राम भी बनाना है और लिखना भी है. तो कितना रट्टा मारोगे, समझोगे तभी तो लिखोगे. रट्टा तो थोड़ा बहुत ही मार सकते हो ना. अब ये जो ऊपर जा रहा है, दिस इज योर वेब फ्रेम. ये पतला होता है और इट इज मोर प्रेवलेंट इन टैंकर्स. वेब फ्रेम, दिस इज अ मेन फ्रेम और ये वेब फ्रेम, और इनके बीच में भी ये स्ट्रक्चर लगेगा, वो बीम नहीं है. यहाँ बीच में स्ट्रक्चर लगा, वो भी बीम नहीं है. नाउ देयर इज द मेन बीम्स आ गई, डेक बीम्स. तो ये ट्विन डेक की बीम्स थी. दीज आर द बीम्स अंडर द मेन डेक. So this becomes deck beams, and this is twin deck beams. Both are put to starboard or athwart ships. Now this will be deck longitudinals. So they are all under deck. They're providing longitudinal strength going forward to aft. So main deck लग गया. अब इस पे ये क्या है? नए बैच को, पुराने बैच को तो चलो पता है, नया बैच बता भाई ये क्या है. व्हाट इज दिस नोन एज?
पुराना बैच आप लोग नहीं बोलोगे, नया बैच बोलेगा। पुराना बैच को तो बहुत बार समझा दिया है। हाँ भाई, जून बैच, मई बैच, चलो मई बैच बताओ, जून बैच को मालूम ही नहीं है। मई बैच बताओ। CS ट्रैक है। CS फिश प्लेट नहीं है, ये जून बैच बताने वाला था, उनके मुंह से जवान वो बोल दिया कि ये फिश प्लेट नहीं है, जो शिप पे सीखा है फिश प्लेट वो नहीं है, ये शेयर ट्रैक है। फिश प्लेट नाम की कोई चीज नहीं है। आप चीफ ऑफिसर बनने वाले हो, गलत चीज कैडेट को नहीं सिखाओ। आपको गलत चीज सिखाई गई है जब आप कैडेट थे, तो आप जब चीफ ऑफिसर बनो कैडेट्स को गलत चीज नहीं सिखाओ, अदरवाइज वो वापस मेरे पास आते हैं, फिर वही चीज शुरू हो जाती है। आपकी गलती नहीं है, ये इन्होंने बेसिकली पासिंग डाउन द इंफॉर्मेशन जो चल रहा है वो 50 साल से वही चल रहा है। तो सीनियर मास्टर्स भी इसको फिश प्लेट ही मानते हैं अभी भी, कई सर्वेयर भी इसको फिश प्लेट ही मानते हैं, बट टेक्निकली कोई फिश प्लेट नाम की चीज नहीं है। दैट टर्म वाज इन्वेंटेड बाय द क्रू मेंबर्स, क्योंकि टैंकर में इसके ऊपर से फिश उड़ के आती थी, फ्लाइंग फिश, इसलिए इसका नाम उन्होंने फिश प्लेट दे दिया। फिश प्लेट तो आपकी नॉर्मली रेलवे लाइंस में मिलेगी, यहाँ नहीं मिलती है, क्योंकि उसका शेप भी फिश के जैसा होता है, बट यहाँ कोई शेप आपका फिश जैसा है ही नहीं, इसका नाम फिश प्लेट नहीं है। अब क्या आ गया, ये है हैच कोमिंग। दिस इज हैच कोमिंग एंड दिस प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम एंट्री इनटू द होल्ड और टैंक। नॉट टैंक तो नहीं होगा, ये तो होल्ड है, सो इट विल प्रिवेंट द एंट्री इनटू द होल्ड। तो लोड लाइन में पढ़ाया था, पोजीशन 1 में हैच कोमिंग का हाइट है 600 mm, पोजीशन 2 में 450 mm, ये आपको पढ़ाया था लोड लाइंस में। तो ये हैच कोमिंग की हाइट की बात कर रहे हैं। पोजीशन 1 में इट इज मोर बिकॉज वाटर एंट्री आगे से होती ज्यादा। पोजीशन 2 में इट इज आफ्ट और 25% ऑफ LBP फ्रॉम फॉरवर्ड परपेंडिकुलर। सो पोजीशन 1 इज 25% of LBP from forward perpendicular aft towards aft, and beyond this position 1 is position 2. Now this is your twin deck, this is your transverse bulkhead, this is your tank top or your whole top, not tank top तो नहीं हुआ, your DB tank का top हो गया। अब ये पूरा कनेक्ट हो गया, तो ये बल्क कैरियर का नहीं है, ये जनरल कार्गो का, इसका हेडिंग भी गलत है, बल्क कैरियर मिडशिप सेक्शन लिखा है, बट दिस इज जनरल कार्गो मिडशिप सेक्शन, बिकॉज बल्क कैरियर में ट्विन डेक नहीं होता, ये हेडिंग भी गलत है। अब ये हैच कोमिंग के सपोर्ट्स आ गए यहाँ, दीज आर द सपोर्ट्स ऑफ हैच कोमिंग। तो सर इसमें एक बार स्ट्रेंजर प्लेटिंग का बता दोगे, इसी डायग्राम में कहाँ पे होती है? कौन सी प्लेटिंग? सर स्ट्रेंजर प्लेट जिसको बोलते हैं। बेटा इसमें स्ट्रेंजर प्लेटिंग है ही नहीं, तो कैसे दिखाएं? स्ट्रेंजर प्लेटिंग इसमें नहीं है। स्ट्रेंजर प्लेटिंग बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेट यहाँ लगी हुई होती है, जैसे प्लेटफॉर्म बना होता है यहाँ। टैंकर्स में ज़्यादा मिलेगा, टैंकर्स में स्ट्रेंजर प्लेट्स ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि वो विंग टैंक्स में आप खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पे, दैट इज स्ट्रेंजर प्लेट। इनमें नहीं मिलेगा, इनमें स्ट्रेंजर प्लेट्स नहीं मिलेगी। ठीक है, वो स्ट्रेंजर प्लेट भी आपको दिखा देंगे। इसमें कुछ किसी को दोबारा देखना है, ये हो गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सर वन क्वेश्चन सर। हाँ बोलो सर, ये जो आपने फ्रेम्स दिखाए हैं, फ्रेम्स के ऊपर येलो वाले जो है वेब फ्रेम्स है, तो सर आपने बोला था कि टैंकर में ये वेब फ्रेम्स कंटिन्यूस होते हैं क्या सर? नहीं, कंटिन्यूस नहीं होते, वेब फ्रेम थोड़ा जाली बना देते हैं, ये ऐसे जाली बना देते हैं। टैंकर तुमने किया है क्या? नो सर। अच्छा, तो चलो टैंकर जब मिडशिप सेक्शन करेंगे तब बताएंगे उसको।
ओके वो सर। जाला सा बना देते हैं, वो ऐसे कंटिन्यूस इस टाइप का, उसमें बीमनी नहीं आता, टैंकर्स में कोई बीमनी नहीं मिलेगा, दे विल हैव अ कर्व शेप्ड हियर, तो उसमें बीमनी की जरूरत नहीं पड़ती। वीडियो समझ आ गया सबको? तो एक यस पीपीटी सर। थोड़ा सा दिखा देते हैं। हाँ, थोड़ा पीपीटी अब दिखा देते हैं, इसलिए मैंने शुरू किया था इससे कि थोड़ा बेसिक शुरू हो जाए, देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन मिडशिप सेक्शन। अदरवाइज क्या है, वो आपके ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा, फिर आपका बैंड बच जाएगा, फिर रट्टा कहाँ तक मारोगे। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा बेसिक्स आपका शुरू करें, बाकी तो फिर समझ आ जाएगा ना, फिर समझना मेन चीज है। थोड़ा सा हल स्ट्रक्चर भी समझा दें, देन वी स्टार्ट विद योर। अभी आधा घंटा हमारे पास है, तो ये करा देंगे। तो अब आपका जो मार्जिन प्लेट है वो इस टाइप की प्लेट है, ये देखो यहाँ तो येलो दिखाई थी, ये पूरी प्लेट बनती है ऐसे, दिस इज मार्जिन प्लेट। गसर प्लेट होती है बेसिकली दो प्लेट्स के बीच में एक और प्लेट लगती है, वो गसर प्लेट है, ये आपको बताई थी, फिर बता देंगे आपको, हैच कॉर्नर्स के नीचे लगती है। दिस इज योर टैंक साइड ब्रैकेट एंड दिस इज द फ्रेम। तो फ्रेम ऐसे लगी हुई है, ये फ्रेम है, जो ये वेब फ्रेम है और ये मेन फ्रेम है, ये ट्विन डेक की बीम है और ये मेन डेक बीम है। इसके नीचे बीम नहीं, यहाँ बीम नहीं, यहाँ। दैट इज योर टैंक साइड ब्रैकेट। और मार्जिन प्लेट बेसिकली जब इसके जब ये कनेक्टेड है फ्लोर के बीच में, इधर में मार्जिन प्लेट लगती है। अब कई बार ओरल में पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन प्लेट एंड मार्जिन लाइन। हाँ भाई, व्हाट इज द डिफरेंस मार्जिन प्लेट एंड मार्जिन लाइन? मार्जिन लाइन तो बताई थी या नहीं बताई थी? Yes, sir. 76 below the uppermost ventilator. हाँ, so that is an imaginary line. Margin plate is not imaginary plate. Margin plate is there. Margin line is imaginary line, which is 76 millimeter below the bulkhead deck, and that should not be submerged in any condition of intact stability. That is, even if your compartments are flooded 1 or 2, it should not be submerged. That is your margin line. Margin plate जो है वो यहाँ connected होती है ब्रैकेट और प्लेट फ्लोर के बीच में। तो ये प्लेट फ्लोर वाले, एक तो सॉलिड प्लेट फ्लोर हो गई है, इनके बीच में इंटरकॉस्टल गर्डर यहाँ आ गई, और ये वाली जो प्लेट है दिस इज मार्जिन प्लेट, और ये मिल स्ट्रेक आ जाती है। ये सॉलिड प्लेट वाटर टाइट फ्लोर है, दिस इज द ब्रैकेट फ्लोर जो बता रहा था। तो ये वाली टैंक साइड ब्रैकेट हो गया, एंड दिस इज योर ब्रैकेट ऑन द सेंटर लाइन, और इसको फ्लैंजिंग किया गया, इसको मोड़ा गया है, दैट मोड़ने को हम फ्लैंजिंग कहते हैं। So this is flanged here, this is flanged here, and then you have a center line, your intercostal side girder, जिसके ऊपर स्टिफनर लगा है जहां ये फ्रेम जा रहा है। इसके बीच में एंगल स्टड भी लगते हैं, those are angle studs which are fitted here. मैं एक बार जल्दी आपको सारा दिखा देता हूँ। And then ट्रांसवर्स फ्रेमिंग क्या है, ये ट्रांसवर्सली फ्रेम डीबी है जिसमें कोई लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, दिस इज द ब्रैकेट फ्लोर। तो ये ब्रैकेट फ्लोर लगे हैं और ये सॉलिड प्लेट फ्लोर है। तो ये डेक बीम्स हो गई, ये फ्लोर हो गया, ये ट्विन डेक बीम्स हो गई, और बीमनी ये लगी है, दिस इज द बीमनी। सो दिस प्रिवेंट्स डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस, अदरवाइज यहाँ क्रैक हो जाएगा और रैगिंग स्ट्रेस को प्रिवेंट करती है। ये स्ट्रिंजर अब दिखा रहे हैं तुमको, ये जो प्लेट लगी है हॉरिजॉन्टल प्लेट, दैट इज द स्ट्रिंजर। ये डबल हल में ये प्लेटिंग लगी है, इसको भी स्ट्रिंजर प्लेट कहते हैं। सो आइदर इट कैन बी अथवर्ड शिप्स और इट कैन बी फोर एंड हाफ। यहाँ फोर एंड हाफ लगी है, यहाँ अथवर्ड शिप लगी है। सो दिस इज योर स्ट्रिंजर प्लेट। इसके अंदर जो प्लेट लगी है इसको भी स्ट्रिंजर प्लेट कहते हैं। सो दिस इज योर VLCC मिडशिप सेक्शन। VLCC का मिडशिप सेक्शन जो हम करेंगे, सो दिस इज योर सेंटर लाइन बल्कहेड। सो दो ही टैंक है इसमें, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड, सेंटर टैंक नहीं है। दिस इज योर डबल हल। तो ये सब कराएंगे आपके टैंकर्स में।
and your various strakes are like these. ये आपका garboard स्ट्रेक है, इसको डिटेल में बाद में बताएंगे. बिल स्ट्रेक है, सबसे ऊपर जाता है आपका shear स्ट्रेक, और ये डेक स्ट्रिंजर है. उसके बाद डेक की प्लेटिंग चालू होती है. दिस इज योर सेंटर लाइन गर्डर, और ये साइड गर्डर्स आ जाते हैं, लॉन्जिट्यूडनल गर्डर और साइड गर्डर्स ये वाले. सो ये आपका प्लेन बल्कहेड है, जिसमें ये फ्रेम्स नहीं है, ये स्ट्रिंजर्स है, ये स्टिफनर्स है, सॉरी, ये स्टिफनर्स हैं